Good morning, respected dignitaries, esteemed faculty members, and distinguished guests. It is an honor to welcome you all in AICTE training and learning at the Academy sponsor one-week faculty development program on smart manufacturing and engineering management in the era of Industry 4.0, daily organized by the Mechanical Department. We all are gathered here for the plenary session of Vinay Chawla sir, founder and director of Enlight Soul, Nagpur, on the topic Introduction to Smart Manufacturing System. Before starting with the session, I would like to invite Dr. Ranjit Patil sir, HOD of Civil Department, to present sampling to Vinay Chawla sir. Vinay Chawla sir, founder, motivator and innovator, a passionate international motivator and innovator, holds 8 patents by his name. Founder of Enlightening the Soul and Patent Industry Connect (PIC), an international enterprise designing the global innovation and patent funnel, having a repository of 1,000 plus patents, awarded as Youth Motivator and Trainer under an initiative of HRD Ministry, India, alumni of Tata Institute of Social Science. He executed India's first patent fest with Sri Devendra Fadnavis ji, Chief Minister, Maharashtra State. He also recognized as Youth Icon by Ministry of Youth Affairs and Sport under mentorship of Sri Narendra Modi ji. Invited as youth leader amongst 200 leaders from Bharat by School of Ultimate Leadership, brainchild of Sri Narendra Modi. Launched his first patent, Gem of Vidarbha, by his hands of Sri Nitin Gadkari ji. He also contributed in framing the draft of the National Youth Policy of Ministry of Youth Affairs and Sports, India. He also associated with ministries, industries, and innovators from Europe, UK, UAE, Africa, and Asia. Now, I would like to call Vinay Chawla sir to start with his session. सबको ये भी देता हूँ Yes, so very good morning. So happy to see you all. Fresh morning. It's I think the second day of the FDP program. Okay. So before I start, I would like to thank the whole team of this amazing campus. Shailendra sir, Akshay sir, they invited me, and the whole team, Abhijit sir, Dushan sir, your management. So it's always great to be part of this institution and learn with you. So I am not here to tell you something. Achha, before I start, which language is fine? Pure English, Hindi English mix? Mix will work? Okay, works. Okay, done. And next is, I am not here to tell you something because you are deep into research, deep into teaching. So I am also here to learn from you. Okay? Perfect? Done. So, yeah. Thank you. Novel, let's be will work. Hello. 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 Okay, great. Can you hear me? Clear? Okay. So,
I just want to know a brief background. How many of you are from engineering background? All of us. Because they told me you are from Polytechnic also. How many of you are from Polytechnic? Okay. और engineering में कितने computers side के faculty हैं? Computers, IT. How many of you are mechanical, civil, any other branch we have? Electronics. अच्छा, electronics, semiconductor side. How many of you from electronics, semiconductor? Okay, perfect. And how many of you are students or volunteers or leaders? Raise your hand. नहीं, I just want to know. तो उस हिसाब से we'll talk about and discuss things. Perfect. Done. So देखो, आज का टॉपिक क्या है? Smart. Great. So हमारे सेशन को we'll discuss in 3 parts. सबसे पहले स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग चैट जीपीटी पे डालोगे, गूगल पे डालोगे, आपको सब मिल जाएगा. मैं उसके लिए नहीं आया. I am not here to tell you the theory of the process is simple, efficiency increases, AI intervention, IoT. I am not here to tell you that. We will discuss that. But I am here to tell you the mindset and हम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग से कैसे बदल सकते हैं, प्लस आप एज अ पायनियर विद स्टूडेंट्स उसमें कैसे आईपी डाल के, पेटेंट डाल के कैसे रेवोल्यूशन ला सकते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो हम ये सेशन को 3 फेज में डिस्कस करेंगे. पहला हम प्योरली माइंडसेट, ट्रिगर और फैकल्टी डेवलपमेंट की बात करेंगे, साइकोलॉजिकली और बिहेवियर. दूसरे पार्ट में हम कोर डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक एंड थर्ड वी आल्सो इफ टाइम परमिट्स. हाउ मच टाइम वी हैव? Okay, if time permits, we'll have some small activity or an open forum. Works? All right? Hello? और तीसरा पॉइंट, हेलो बोला मतलब चार्जिंग चाहिए. जितनी आप चार्जिंग दोगे उतनी चार्जिंग निकलेगी. ठीक है? हेलो? Perfect. So point number 1, mix of Hindi English. Next, it's two-way. Third, it's non-judgmental. Nobody is judging you. You are right, you are wrong. We have to throw all our barriers and we have to give 100%. Okay? Perfect? And third, hello matlab charging change. Works? Works? Alright. How many are final year? How many of you teach final years? Or is it a mixed blend here? That's a second and final, same faculty can teach. Because different colleges have different structures, so I am just asking. Alright, great. Are you in a state to stand up and sit? Can we have a small icebreaker? Yes. Are you guys ready? Yes. Guys, are you guys ready? Yes. Perfect. Chalo. So when I say stand, you have to stand. When I say sit, you have to sit. Okay? मुझे पता है दूसरा दिन है, सुबह का माहौल है, इतने सारे सेशन है हफ्ता भर. So I want you to come back here. ठीक है? Stand बोला तो stand, sit बोला तो sit. Stand. Sit. Stand. Sit. Stand. Stand. अभी लोग खड़े नहीं हुए सर, वैसे ही sit बोल रहे हैं. Sit. Left बोला तो left देखना, right बोला तो right देखना. Left. Right. 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 Left. Right. अब उल्टा. Stand बोला तो sit, sit बोला तो stand. ठीक है? Ready? Stand. Sit. Stand. Sit. Sit. Okay, stand. अब लेफ्ट बोला तो राइट देखना, राइट बोला तो लेफ्ट. ठीक है? लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, 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 लेफ्ट, अप. लेफ्ट बोला तो राइट, राइट बोला तो लेफ्ट, स्टैंड बोला तो सिट, सिट बोला तो मिक्स में चलेगा. ठीक है? ओके? लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, स्टैंड. ओके, सिट. लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, 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 सिट. चलो, वेरी गुड. स्टैंड, स्टैंड, एवरीबॉडी. सब आगे, everybody here? Everybody here? सब इधर आ गए? अब एक्टिविटी से क्या सीखा बताओ? We must be alert. Very good, alert. और
Focus or Sense. okay, sensory activation or Attentiveness. sorry. Attentiveness. Okay. What else? Liveliness. Okay. Presence of mind. Okay, perfect. What Quick else? action. Quick action. Sorry. Quick action. Quick action or Concentration. very good. Okay, let's start. Yes. So first half, as in first part of today's session is about the 3 steps to unlock your potential. जितने भी मैंने फैकल्टी डेवलपमेंट ली है विद डिफरेंट कॉर्पोरेट्स अक्रॉस सिटीज इवन दुबई, तो जितना मुझे एशिया पैसिफिक समझ में आया एक माइंडसेट, तो उसमें से पूरा डिस्कस करके आउट आफ्टर 1000 सेशन ये these are 3 points to unlock your potential, and if you unlock your potential तो you can also develop your students potential, क्योंकि इतना सारा hidden prospects है आज की तारीख में which teachers can do it with students also, right? Okay, point number 1, let's start. एक बार क्या होता है, स्मॉल स्टोरी, एक बार क्या होता है, गौर से सुनना। एक फार्म के अराउंड एक फार्मर होता है, बहुत पहले की बात है, वो फार्मर की इच्छा होती है कि उसे एक हाथी को घर लाना है। तब लीगल नॉर्म्स हुआ करते थे, पूरा ग्रीन बेल्ट था, खेत था, तो वो फॉरेस्ट से परमिशन होता है और वो एक बड़ा हाथी वहां पे जो भी पूरा फॉरेस्ट वाले एलिफेंट्स को पालते हैं, वो एक बहुत सारे बड़े हाथी को एक छोटा हाथी अपने खेत में ला देते हैं। Why I'm telling you is very important. The elephant comes to his farm. अब वो उसको काम पे जाना है, तो वो हाथी का एक छोटी टेबल लेता है, उसको रस्सी से हाथी के पैर को बांध देता है और अपने काम पे चला जाता है। अब हाथी छोटा है, उसको कुछ नहीं मालूम, उसको लगा मैं बंधा हूँ, वो वही अपना खाता है, वही बैठता है, and the farmer goes, works, come back. 1 साल जाता है, 2 साल जाता है, 3 साल जाता है, धीरे धीरे करके हाथी छोटा हाथी बड़ा हाथी बन जाता है। Natural process, right? Now again, farmer को काम पे जाना है, but वो बड़ा हाथी बड़ा हो गया, but वो क्या करता है, सेम रस्सी, सेम टेबल बांध के अपने काम पे चला जाता है। अब हाथी को क्या लगता है कि मैं बंधा हूँ, मैं नहीं जा सकता, लेकिन हाथी इतना पावरफुल है कि वो थोड़ा अपना पैर घुमाए तो वो फुटबॉल की तरह टेबल उड़ा सकता है, लेकिन उसके दिमाग में क्या भरा है, वो बंधा हुआ है। तो हम सब हाथी की तरह हैं, हम सब में भी हाथी में जो विशाल ताकत है उसको ऐसा से नहीं, क्योंकि उसको कंडीशन की गई है, पास उसके पीछे उसके इतने सालों के उसकी कंडीशन है उसके ऊपर कि नहीं मैं बताऊं कहीं नहीं सकता। उसी प्रकार हम सब हैं, हम सब में विशाल ताकत है, हम सब में रिसर्च की क्वालिटीज है, हम सब में टैलेंट है, हम सब में पोटेंशियल है। वी कैन मेक मैन्युफैक्चरिंग स्मार्ट with lot of your ideas, with collaborations, with patents, with innovations, with research papers, lot of things. You have that potential, you have that acumen within you. But वो जो रस्सी है, even student teachers सब, we have power within you. You are special the way you are. कर सकते कि नहीं आप डिसाइड करोगे, कोई और नहीं। आप सब में ताकत है, लेकिन कुछ रस्सियां हैं जो हमको बांध के रखी है, जैसे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, इनोवेशन, और मैं सर हमारे बस की बात नहीं है, हम आते हैं सिर्फ पढ़ाते हैं। These are all barriers which we have. We all of us have. Yoga Academy, ऐसे personal barriers नहीं। I'm not a good speaker, I'm not good enough, I'm not competent, मैं नहीं कर सकता, मेरा PhD नहीं है, मेरा background नहीं है। No, you have to break all the barriers and understand the power of elephant within you to break all the aspects and come up with your true self. मैंने शैलेंद्र जी को वही बोला कि मैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग तो आपको मैं दिन भर का प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ 7 घंटे का, बट मैं आज ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपके अंदर क्या ताकत है, तो मैन्युफैक्चरिंग स्मार्ट कैसे बनाओगे, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है, आपको बस निकालना है। And 2020 to 2040, believe me, is the era of Bharat. Era for education, institute, teachers and students. ये era आपका है।
इतनी स्कीम्स अवेलेबल है, इतना फंड अवेलेबल है, इतना ग्रांट्स अवेलेबल है, इतने मिनिस्ट्रीज फंड करना चाहती है स्टूडेंट्स टीचर्स को. यू जस्ट टू स्टार्ट. कोलैबोरेशंस के लिए ओपन है, इंस्टीट्यूट कोलैब कर रहा है, इंटर डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, इंडस्ट्री टाइप कर रही है, एवरीथिंग इज ओपन. यू जस्ट हैव टू स्टार्ट. राइट? हेलो. Yes, sir. I'm working with 4 ministries, central and state. All of them are working for students and colleges. मैंने सिर्फ एजुकेशन और यूथ में कहा, अभी साइंस एंड टेक भी कर रहा है, और फिर बायोमेडिकल भी कर रहा है, मेडिकल साइंसेस भी कर रहा है, फिर नीति आयोग भी कर रहा है, मित्रा भी कर रहा है. All are focused on youth because Bharat is the youngest nation, and you all are the actual parameters to set that mix. Right? Make sense? Yes. So point number 1, break your parents. Point number 1, believe in your power, understand your true power. Make sense? Hello? Yes. Point number 2. राहुल द्रविड़ का नाम कितने ने सुना है? राहुल द्रविड़ एक एरा था जब वो कंटिन्यूस सेंचुरीज बना रहे थे, तो नागपुर में उनका एक इंटरव्यू हुआ. अब वो इंटरव्यू आपका दूसरा पॉइंट है. इंटरव्यू में जो उनको सवाल पूछा गया, उसका जो उन्होंने जवाब दिया, वो आपका दूसरा पॉइंट है. उनको पूछा गया कि आप कंटिन्यूस सेंचुरीज बना रहे हो, आपका क्या राज है? तो उन्होंने वो बहुत सिंपल है. मैं जब फील्ड में जाता हूँ, मैं सोचता हूँ पहले 25 रन कैसे बने. मेरी पूरी एनर्जी, फोकस पहले 25 रन. जैसे ही पहले 25 रन हो गए, अपने आप को शाबाशी देता हूँ, फिर सोचता हूँ अगले 25 कैसे. पूरी एनर्जी अगले 25. जैसे अगले 25 बन गए, फिर अपने आप को शाबाशी दिया, फिर अगले 25. तो ऐसा करते करते कब सेंचुरी बन जाती मालूम नहीं. तो द पॉइंट इज शॉर्ट टर्म गोल्स विल टेक यू टू लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स. अब वो 25 रन उसके थे, आपके लिए 25 रन इज योर शॉर्ट टर्म गोल. What you can do is make छोटा-छोटा goals. You already have a lot of workload. I know. I work with teachers. You know, a lot of administration work is given on you. I know teaching तो अभी ऐसा हो गया कि वो एक बाय प्रोडक्ट हो गया आपका. मैं वो भावना समझ सकता हूँ. I can empathize. Lot of administration and because after autonomy also there is a lot of data compilation and a lot of other work is also on you. I know. But you still आपको ये नहीं बोलना है कि आप एज ए टीचर एज ए फैकल्टी कैन डू एंड कंट्रीब्यूट अ lot of things for the campus for your own growth as well. So short term goal उनका था, आपका short term goal you have to set. That can be one research paper, that can be one patent, that can be one copyright, that can be going to an industry, that can be collaborating with some other faculty, maybe some other college, maybe MOU with some industry. I don't know. You know it better. But if you set a short term goal कि नहीं, ये हफ्ते का हम 3 टीचर्स का एक गोल है, एक डिजाइन पेटेंट डालना है, कैसे डालना है, कहाँ डालना है, वो सब जुगाड़ करना है, टॉपिक निकालना है, ये निकालना है, इंडस्ट्री से निकालना है. तो these short term goals छोटे 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 without any pressure. I know you have to balance and align that work. कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इतना है, टीचिंग उतना है, I know every other aspect. But आपका ट्रू पोटेंशियल निकाल के अगर आप छोटे छोटे गोल बनाओगे, then long term it becomes a long term achievement. 1 to the power 10 is 1, but 1.01 to the power 10 makes a difference after a period of time. Every day consistent थोड़ा effort makes a big difference. I can connect you with lot of faculties from across campuses. They are eager to collab and they can easily collaborate you with different innovations, smart technology, जो भी आपके डोमेन होंगे, AI, robotics, IT, semiconductors, whatever, infrastructure, design, civil, etc. I have 8 patents, 10 are in pipeline. मैंने एक भी पेटेंट का एक भी रुपया नहीं दिया. मैंने सिर्फ कोलैब किया है क्योंकि I love collaborating with innovators and faculties and not only me, there are a lot of such innovators across the state, city, and these people are eager. Colleges are paying for patents and innovations and these smart manufacturing, lot of processes, अलग-अलग design, utility, etc. They are ready to pay. They are reimbursed for it. I can connect you with MSME Ministry. They are reimbursing all the innovations and patents. 1 lakh for national and 5 lakh for international. और फैकल्टीज हैं जो ड्राफ्ट करके डालने को रेडी हैं. आपको सिर्फ यू हैव टू जस्ट बी अ पार्ट. और ये पहला स्टेप है. नेक्स्ट स्टेप प्रोटोटाइप का एंड टॉक लेकर.
Start, at least you can start the process. आप किसी से कम नहीं है. It's very simple. आप एक बार इन्वॉल्व होंगे तो समझेंगे. बराबर? मैं सिर्फ आज जोत से जोत जलाने आया हूं. मेरे दिए से एक छोटी जोत जलाने आया हूं. मेरे को मालूम है आपके अंदर क्या ताकत है. स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग आप मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हैं. मेरा एक ही काम है, आपको सिर्फ आपकी स्मार्टनेस को ट्रिगर करना है. आपके अंदर ऑलरेडी है. बराबर? मेरा ये काम है. सिंपल, राइट? हेलो. सिंपल, क्योंकि आप सब में ताकत है और आधे से ज्यादा तो नारी शक्ति है. नारी शक्ति तो और पावरफुल है. सिंपल. पॉइंट नंबर 2, छोटे छोटे गोल्स विल मेक यू टू लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स. अब आपके गोल्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में तो गोल्स भी स्मार्ट होने चाहिए. स्मार्ट का डेफिनेशन बताओ. टेल मी द डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट. बोलो बोलो, चलेगा. गलत होगा चलेगा. सही गलत से कुछ होता नहीं ना. ओके, नहीं स्मार्ट का मीनिंग बताओ. मैन्युफैक्चरिंग एक पार्ट होगा, बट स्मार्ट गोल, स्मार्ट एनीथिंग स्मार्ट क्या होता है? The work which is done very effectively and efficiently. एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. Bring some innovation in ओके, कुछ नया बन रहा है. न्यूनेस और Use new technology. Use new technology. यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. वेरी गुड. तो स्मार्ट का अगर आप डिवाइड करो, एस से आता है स्पेसिफिक, एम से आता है मेजरेबल, ए से आता है अचीवेबल. हवा में नहीं होना गोल. सर फोड़ देंगे, सर कर देंगे, क्या कर देंगे नहीं मालूम. अचीवेबल गोल, सर इतने दिन में. एस एम ए आर इज रियलिस्टिक एंड टी इज टाइम. कि एक हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिन में मेरे को रोज आधा घंटा मिलेगा. 7 में सैटरडे संडे छोड़ दूं तो 5 इंटू आधा घंटा इस 2.5 घंटा. 2.5 घंटा में 3 फैकल्टी, मेरे 7.5 मैनर्स, 7.5 घंटे का मैनर्स 3 फैकल्टी है ना. 7 का गोल है तो 7.5 घंटे एक हफ्ते में देने में हमें एक कॉपीराइट, एक छोटे छोटे गोल रियलिस्टिक अचीवेबल. मैं रियलिस्टिक भी हो, ऐसा नहीं हो आपके ऊपर इतना वर्क ओवर टीच कीजिए और आप पूरे में 4 पेटेंट डालो. कैसे डालोगे? इज इट अचीवेबल? इफ इट इज, वेल, राइट? हेलो. सिंपल. तो जैसे स्मार्ट गोल्स है वैसा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग. बराबर? पॉइंट नंबर 2, यू हैव टू मेक छोटा छोटा गोल्स व्हिच आर रियलिस्टिक, अचीवेबल एंड टू द पॉइंट. एंड ठीक है ना, आप इंसान हो, मैं समझता हूं. यू आल्सो हैव योर फैमिली प्रायोरिटीज. बच्चे होंगे, पर्सनल लाइफ होगा. आई नो देयर आर अदर थिंग्स इन प्लान, बट वो सब बैलेंस करते हुए आप जो भी रियलिस्टिक प्लान बना सकते हो. नहीं बना सकते तो कभी छूट जाता है, दैट्स ओके. बट इफ यू ऑन इट, इफ यू ट्रिगर योरसेल्फ, इफ यू ट्रिगर योर पावर, अगर आप अपना स्मार्टनेस निकालेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग स्मार्ट होना ही है. मेक सेंस? हेलो. हेलो. पॉइंट नंबर 2, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म इफेक्ट. नाउ आई कम टू थर्ड पॉइंट, व्हिच इज again very relatable for every one of us, because in the end we are humans, right? ये क्या है बताओ? क्या है? हिंदी में बोलो. कभी मिले हो आलू से? आलू का इस दुनिया में क्या काम है बताओ? It's like a Consumable or? It's like a filler. It goes with every subsidy. Very good. और क्या काम है? बताओ. कुछ भी फेंको, गलत होगा चलेगा. It gives energy. हाँ, which energy? स्टार्च वाली एनर्जी की? Food energy. फूड. ओके ओके. आजकल एनर्जी इज अ ब्रॉडर टर्म और it is used, it can also be used for generation of electricity. Very good. और अगरबत्ती स्टैंड? अरे बोलो ना. और क्या काम? बोलो बोलो. I went to a cosmetic college, उन्होंने बोला कि सर ये तो ब्यूटी केयर के काम आता है. ये मेरे लिए नहीं पूछता है, तो बोलो ना. हाँ, डार्क सर्कल्स हटाने के लिए. वेरी गुड. और हर जगह आलू होता है. कहीं भी यूज होता है. और समोसा. अच्छा, वेरी गुड. ओके. और
पेपर वेट परफेक्ट। चलो ये हो गया एक। अब मैं आपको एक पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूँ जो कैरेक्टरिस्टिक है। आप कभी भी गौर करना, जैसे ही आलू जमीन से निकला, जैसे ही जमीन से आया पड़ा है, आपके कलकत्ता नागपुर में जो बिगेस्ट मंडी, फार्मर्स के पास कलकत्ता मंडी वाले जाते हैं, बोलते हैं 2 बड़ी ट्रक आलू लेना। आलू को उठाए, ट्रक में डाले, पड़ा है, ट्रक चल रही, पड़ा है, पानी आ रहा है, धूप आ रहा है, कोई फर्क नहीं, चल रही है जिंदगी, धक्का लग रहा है, पड़ा है, देख सकते हैं, चल रहा है। आ गए कलकत्ता मंडी में, आपके ये ताजबाग मंडी वाले गए, छोटी मंडी वाले बोले 2 छोटी ट्रक देना, उठाए ट्रक में डाले, पड़ा है, देख रहा है, ट्रक चली चली चली, आया मंडी में, आ गया, पड़ा है। ठीक है, आपका नाम? हाँ? तरुण जी गए, बोले 2 किलो आलू देना, आलू को उठाए, उड़ गया, पन्नी में डाले, डल गया, देख रहा है तरुण, पड़ा है। ऐसी होता है भाई, ऐसी होता है। घर में गया, टोकरी में डाल दिया, वहां मिल गया उसको प्याज, प्याज भी जैसे अपन को मिल जाते अपने दोस्त, बराबर। सी, हम सबकी कहानी है, डोंट माइंड, मैं आई एम नॉट हियर टू टेल यू समथिंग, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन, नॉट पर्टेनिंग टू समवन, ओके। अब तरुण की इच्छा हुई, हम खाएंगे फ्रेंच फ्राइज। क्या खाएंगे? आलू को उठाया, उठ गया, काटे कट गया, तेल में डाले, डल गया, कटा हुआ पड़ा है, देख रहा है तरुण ने खाया अंदर। मुझे बताओ ये प्रोसेस में आलू ने कुछ किया? जैसा उसे चक्री चलाती गई वो चलता गया। क्या हम सब आलू है? क्या हम सब आलू है? अभी आप 2 मिनट इमेजिन करो, आलू जब ताजबाग आ रहा था, अगर उसको सही में उसका ट्रिगर हुआ रहता अंदर का स्मार्टनेस, वो बोलता मैं नहीं जाऊंगा ताजबाग, मैं जाऊंगा मंगलवारी, क्या वो इनके पेट में होता? शायद किसी और के पेट में होता, बट वो खुद की राह में जो करना चाहता कर पाता। तो द पॉइंट हियर इज, अगर हमें किसी में कुछ इंपैक्ट करना है तो हमें हमारा आलू एटीट्यूड, आलस, कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा what I'm good at, what are my strengths, what are my weaknesses, what can I do, whom I can collaborate, what frequency I lie on, मेरी कमियां क्या है, मेरी गलतियां कहाँ हैं, मैं अगर इनोवेटिव नहीं सोच सकती तो कोलैब कर सकती, क्या मैं ड्राफ्टिंग में अच्छी हूँ, क्या मैं कैसे विजिट्स कर सकती हूँ, कैसे अवेयर कर सकती हूँ, कौन से रिसोर्स पर्सन से बात कर सकती हूँ, क्या हो सकता है। वर्कलोड सब पे मुझे ये समझना है कि इकडेच बातचं चेहरे रेडी? सब आ गए? हेलो? हेलो? सब है ना इधर? परफेक्ट। तो मुझे ये जानना है कि अगर मुझे अंदर का सही में पावर ट्रिगर करना है तो सिर्फ सोच के नहीं होगा, सोचना पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है छोटे गोल बनाना। तीसरा पॉइंट है लेथार्जी, कंफर्ट जोन और आलू एटीट्यूड तोड़ना। वेरी गुड। मुझे ये चलाना पड़ेगा, खुद का हर चीज में स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, एज डिपार्टमेंट आपको करना पड़ेगा, एज इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा और एज सेल्फ भी करना पड़ेगा कि मेरी ताकतें क्या है, मेरी कमजोरियां क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरे थ्रेट्स क्या है। मैन्युफैक्चरिंग स्मार्ट हो रही है, क्या मैं स्मार्ट हो रहा हूं? एआई आ गया, क्या मेरे अंदर का एआई चल रहा है? मेरे को मालूम है बहुत रिस्पांसिबिलिटीज है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, डेटा है, पढ़ाना है, और उसके अलावा क्या मैं टेक कर सकता हूं? क्या मैं छोटे लोग बना सकता हूं? क्या मैं अच्छे रिसोर्स पर्सन से बात कर सकता हूं? क्या एमडीपी में जितने फैकल्टी आ रहे हैं उनसे बात कर सकता हूं, सीख सकता हूं, विजिट कर सकता हूं, साथ में कुछ रिसर्च पेपर कर सकता हूं। इफ यू नीड टॉपिक्स एंड इनोवेशन आई कैन गिव यू 100, बट आई वांट आप सामने से आओ और उसको उस पे सॉल्व करो। नहीं हो रहा रास्ते में, क्या मैं कोलैब कर सकता हूं? क्या मैं एमओयू कर सकता हूं? इंटर ब्रांच कर सकता हूं? इन विदिन प्रियदर्शनी ग्रुप कर सकता हूं? नागपुर में विजिट बाहर कर सकता हूं? विदर्भ में कुछ कर सकता हूं? ओपन मार्केट। हमारे समय ये सब स्कोप नहीं था। मैं आईटी का स्टूडेंट था, मैंने मेरे टीचर को बोला था मुझे इंडस्ट्रियल का एचआर स्ट्रीम पढ़ना है। उस समय अलाउड नहीं था 20 साल पहले। वो बोलते थे जो है वो पढ़ो, एग्जाम तो देखो। थिंग्स हैव चेंज्ड, टाइम हैज मॉडिफाइड, योर एजुकेशन पॉलिसी हैज चेंज्ड एंड यू आर पायनियर्स टू एग्जीक्यूट इट। लेकिन एग्जीक्यूट करने में मेरा ये आज इंटेंशन है, हम हमेशा बच्चों के लिए काम करते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इक्वली ग्रो करो, आप लोग भी इक्वल ग्रोथ डिजर्व करते हो, एंड आप लोग करोगे तो इंस्टीट्यूट अपने आप ग्रो करेगा, क्योंकि आप सब में वो ताकत है, आप सब में वो जोश है, जुनून है, से आप यहां बैठे हो। हेलो? लेकिन क्या होता है, हम अभी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है।
तो हमें हमारा कंफर्ट जोन तोड़ के या एटीट्यूड तोड़ के हमें शॉर्ट टर्म गोल प्लान करके खुद के पावर को समझ के लॉन्ग टर्म जाने राइट मेक सेंस Yes, sir. हेलो Yes, sir. मेक सेंस Yes. सिंपल एक विल सी अ स्मॉल वीडियो ऑन द रिलेटेड एस्पेक्ट ठीक है वो एक छोटे से केस स्टडी है ऑफ स्मॉल बर्ड बट हम सब पे बहुत एप्लीकेबल है एट दिस मोमेंट सो आई वांट टू शो यू अ स्मॉल वीडियो ओके Yes. Yes. So what is the learning? परिस्थितियाँ हमें सिखाती है Sorry? जो सिचुएशंस होती है वो हमें कुछ सिखाती है उससे हम नॉलेज लेके हम उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और खुद को सरवाइव कर सकते हैं Perfect. तो देखो या तो आप पॉइंट इज गुड या तो आप सिचुएशन पे रुको या तो सिचुएशन पैदा करो डोंट माइंड इट वाज राइट एज पर द वीडियो या तो यू क्रिएट द सिचुएशन और वेट फॉर समथिंग टू कम और
अच्छा, इज इट रिलेटेबल? हम सब पे ऐसा होता है? तो क्या होता है, हम कितने भी बड़े हो जाए, हमारे अंदर का जो बच्चा होता है ना, जो बचपन में हमारे ऊपर जो पैरामीटर्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हम लेके चलते रहते हैं, ऊपर का कवच बदल जाता है। तो अगर हम इंटरनल फैक्टर्स को पे काम करें, तो एक्चुअली वी कैन ब्रेक आवर कंफर्ट जोन, एक्चुअली वी कैन फेस द फियर, एक्चुअली वी कैन कम आउट ऑफ शेल, एंड एक्चुअली वी कैन वर्क ऑन आवर ओन ग्रोथ। एंड इफ यू ऑल वर्क ऑन योर ओन ग्रोथ, automatically you will help children to work on their growth and eventually the institute. Make sense? Hello? Yes. Or? Overcoming the fear. Okay? Or? अच्छा, पहले वो पाइपर जो था बहुत डर रहा था वहां जाने के लिए। सर ने जैसा बोला, परिस्थिति आई तो जब वो पानी के नीचे का पानी ऊपर गया तो क्या देखा? अपॉर्चुनिटी। और कि fear फेस करना उतना भारी नहीं है जितना लगता है। So most of the things you worry about are only in your mind, nothing else. It's only here. और आधे से ज्यादा चीजों के बारे में जो हम चिंता करते हैं वो होने ही नहीं वाली है, सिर्फ इधर है। वो होती नहीं है रियल में, सिंगल होती है। और सर ने जैसा बोला, जब फेस किया तो समझ आई तो कुछ नहीं था, मैं हाथी संभाला तो चलती भी नहीं है। लेकिन जब उसने फियर फेस किया तो उसने देखा नीचे पूरा खजाना था उसके लिए। उसी प्रकार आपके लिए, अगर आप अपना कंफर्ट जोन तोड़ो, आप अपने गोल्स प्लान करो, आप अपना फियर निकालो और अपना पोटेंशियल निकालो, तो यू आर नॉट अवेयर देयर इज अ हिडन खजाना गैप। उस दिन 5 डिस्ट्रिक्ट्स के इनोवेशंस एक जगह पे आए हुए थे, दे इनवाइटेड मी, आई वेंट देयर, यू विल नॉट बिलीव, students are looking up to teachers like you, and उनके पास ऐसे beautiful presentations हैं, we have corrected them to commercialize, right? Hidden खजाना is there हमारे नागपुर में, institutes में, आपको बस अलर्ट होकर चलना है, आपको पता ही नहीं क्या पावर है, और आप कहाँ बैठे हो। Make sense? Yes. Hello? Yes. बोलते हैं जब सरस्वती माता का हाथ होता है ना, माँ लक्ष्मी माता खुद आती है। तो यू आर अंडर दैट अम्ब्रेला, बट उससे आपको स्मार्टली निकालना। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का छोटा पार्ट है जी। अगर आपने वो जगा दिया तो यू कैन डू इमेंस। वी डिस्कस दैट नाउ। मेक सेंस? यस। पहला पॉइंट सर, बात को भी भूल गए। ऐसे बहुत लोग आते हैं सर, बहुत बातें होती हैं, हम भूल जाते हैं। नो, यू हैव टू टेक इट। पॉइंट नंबर 1, understand the hidden power barriers. Understand your power and break the barriers. Number 2, short-term goals, long-term plan. Point number 3, और think big. Think big. रोज हफ्ते का प्लान, 3 दिन का प्लान चाहिए खुद के साथ। कोई तुमको पूछने वाला, कोई अप्रेजल नहीं, कोई प्रमोशन नहीं। दिस इज नॉट लिंक, बट इनडायरेक्टली लिंक। वो तुम्हारा खुद का प्लान है, बराबर? मेक सेंस? पॉइंट नंबर 3, come out of your comfort zone and start ब्रेक द आलू एक्टिविटी। जब भी आलू को देखो, आलू खाओ, अपने आप से सवाल पूछो कि मेरे को कितना कदम आगे बढ़ना है। एक कदम, ब्रेक इट। इट्स ओके, स्टिल यू आर पावरफुल एंड ब्यूटीफुल द वे यू आर। आप किसी से कम नहीं है। कंपैरिजन मार्क्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम अपने आप को ग्रो करें, खुद को डिमोरलाइज करने के लिए नहीं बनाए जाते। कंपटीशन इज मेंट to take out your best version, not to make you feel incompetent. You are special the way you are powerful the way you are. You have to understand your power and work on it. That's it. Make sense? Yes. Hello? Yes. Simple. अब तक कोई सवाल? सर आप जा कब रहे हैं? अब तक कोई सवाल? कोई डाउट? जम रहा है? सर नहीं भी जमेगा तो आपको मुंह पे कैसे बोल सकते हैं? So jokes apart, ये 3 parameters, focus on it, you will see magical results, right? Yes. Hello? Yes. अब ये सब जो बातें करना कब है? संडे को, 15 अगस्त, 26 जनवरी, कल मंडे और 1 तारीख कभी नहीं आती। सर 1 तारीख से पक्का, सर संक्रांत से पक्का। जिसको करना है वो 31 को ही करेगा, राइट? तो ये कब करना है? अभी
रोज अभी से स्टार्ट रोज। मैं एक छोटा आपको वीडियो दिखाऊंगा, पूरा पुराना है, बट वो आपकी तरह ही थे, हम सबकी तरह थे। उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो वहां पहुंचे, वो वीडियो है छोटा सा। दैट इज द पावर ऑफ योर एफर्ट्स। So you just mentioned that you want to learn Python. So do not learn Python in manual way in 2021 because learning Python in manual way will take. पर्पसली मैंने आपको YouTube पे स्ट्रीम करके वीडियोस दिखाए हैं। Why I tell you it? ये सब उनकी कहानी है जो हमारी तरह ही थे। उन्होंने ऐसा क्या किया, आवाज बढ़ा दो।
what was the message? 57. हमें There is no passion substitute for होनी hard work चाहिए। to reach towards your profession. Very nice. Hard work every day. और हमें पैशन होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू दैट हमारा एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए डेली, वो मैंने बहुत कट होना किया था। चाहिए। और ओके कंसिस्टेंसी कब वीकली एवरी डे संडे हो चाहे मंडे आपको अगर पता है मुझे यहाँ पहुंचना है तो आपको वो स्किल्स डेवलप करनी है या आपको पता है मेरे अंदर क्या है मुझे यहाँ जाना है आपको रोज थोड़ा देर उसे देना है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोज अगर आप खुद पे काम करोगे कोई नहीं रोक पाएगा और मैं why I streamed it online was because टेक्नोलॉजी इतना शार्प टू एजेड स्वॉर्ड है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता वो हमें कैसे ट्रैप में ले लेता है कैसे रील्स की हम जाल में फंस के हमारा टाइम एनर्जी उस पे वेस्ट कर लेते हैं तो आपको ये देखना है कि यू हैव टू चूज द राइट कंटेंट फॉर राइट पीरियड ऑफ टाइम पहले ये था कि हम बच्चों को बोलते थे ज्यादा से ज्यादा टाइम इंफॉर्मेशन लो अब ऐसा है कि लिमिट करना है क्योंकि बम्बार्ड हो गया इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी से कितना टाइम कट कर सकते हो ये भी देखना है क्योंकि आपका मेजर एनर्जी वहीं निकल जाएगा देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मूवर्स MOVERS सुबह उठने के काम पे जाने के पहले उठने के बाद और काम पे जाने के पहले ये मूवर्स करना मैंडेटरी है ये आपके अंदर की और ताकतें बढ़ा देगा मूवर्स इज M इज मेडिटेट O is oxygenate मतलब any form of exercise right तो movers oxygenate you have exercise VER right read and H is sketch write something journal something plan something so meditate exercise plan read very important right this is very important ये अगर आप करते हो तो आप अपना immense power और बढ़ा दोगे मैं अभी उसके साइकोलॉजी में जाता है वेरी बिग टॉपिक ब्रेन के वेव्स होते हैं और उस सबसे कौन से वेव में आप जाते हो स्ट्रेस लेवल कम होता है कॉर्टिसोल कम होगा सॉरी स्ट्रेस कम होगा तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ेगी हेल्थ पे इंपैक्ट होगा लॉट ऑफ इफेक्ट्स बट बॉटम लाइन ये है कि टेक्नोलॉजी सोने के 2 घंटे पहले और उठने के 2 घंटे बाद नो टेक्नोलॉजी नो लैपटॉप नो रील्स नो फोन यू सी योर पावर योर स्लीप पैटर्न्स रात में हम एक्चुअली फोन देख के जो सोते हैं मेलेटोनिन हमारा स्लीप सेल्स हिट करता है आपका एफिशिएंसी कम रहता है और होते यू फील लेजी अपना पावर निकालने मेक सेंस नाउ आई टच समथिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग तो आपके हिसाब से स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है अच्छा मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है एक ओके और रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट और तो एक कहीं से रॉ मटेरियल लाया समझो सॉलिड वेस्ट है कहीं पे डाला जिस पे डाला वो क्या है मशीन और वो एक प्रोसेस के थ्रू उसने आउटपुट लाया और कुछ वेस्ट निकाला और वेस्ट में और कम आया वेस्ट किसी पे रॉ हो सकता है और जो आउटपुट है वो नहीं लगेगा अब वो आउटपुट जो लगेगा वो भी वेस्ट बनेगा बाद में जाके ये साइकिल इसको क्या कहते हैं कंप्लीट प्रोसेस ठीक है ये और टाइप से चलते हैं अभी कौन से सेक्टर में मैन्युफैक्चर होता है कुछ सेक्टर्स बताओ ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल फूड और आप अपने आजू बाजू नजर को जो दिख रहा है मैन्युफैक्चर में होगा फोन है ज्वेलरी है स्पेक्स है ट्यूबलाइट्स है राइट हेलो अब ये होगी करंट एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसको स्मार्ट बनाना मतलब क्या उसकी ताकत जगाना जैसे आप खुद को स्मार्ट बना रहे अब उसको स्मार्ट कैसे बनाएंगे सॉरी या तो टेक्नोलॉजी ऐड करो या तो प्रोसेस को सिंपल कर दो जो 4 प्रोसेस थ्रू जा रहा था उसको स्मार्टली 2 कर दो राइट जो वेस्ट आ रहा है उसको इनोवेटिव भी और लगा दो राइट और टाइम जो प्रोसेस है टाइम बचना इज आल्सो सेविंग एंड हेल्पिंग टू हैव बेटर प्रॉफिट्स और
इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो भी कर सकते हैं हम वो सब एक्टिविटीज करेंगे। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उसके अंदर ऐसे कुछ अगर ऑयल इंटरवेंशन है, कुछ ग्रीन, कुछ भी ऐसा मैकेनिकल में जो होता है उसमें कुछ एडवर्स इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे, वो भी देखना है, कार्बन क्रेडिट्स देखना है, एनवायरनमेंट पे तो इफेक्ट नहीं हो रहा, लॉट ऑफ उसका वेस्ट कितना हजार्डस है वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो एक तो है आप इनोवेशन प्रोसेस में ला सकते हो, दूसरा एड ऑन टेक्नोलॉजीज ला सकते हो। पहले सर्जरी को डॉक्टर्स करते थे, अभी कौन कर रहा है? रोबोट्स कर रहे हैं। मैं उस दिन ईएनटी सर्जन के पास गया था तो कुछ सर्जन स्क्रीन में देख के पेशेंट पे काम कर रहे थे। तो दिस इज एड ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी। आइडर दिस इज वन। दूसरा है कि करंट एग्जिस्टिंग सिस्टम को सिंपल करना, और तीसरा इनोवेशन ये है कि जो रॉ डाल रहे हो और जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है और जो प्रोडक्ट निकल रहा है उस पे क्या काम हो सकता है। हेलो, मेक सेंस? अभी ये तीनों में नई टेक्नोलॉजीज कौन सी ऐड हो रही है? IoT, वेरी गुड। और AI और क्लाउड और सॉरी Big data. बिग डेटा, यस वेरी गुड। और IoT क्या कर रहा है? सो IoT इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फ्यूचर में जो चीजें इंसान कर रहा है वो इंटरनेट करेगा, मतलब जो थिंग्स है, थिंग्स को मूव करने का काम भी इंटरनेट करेगा, ऐसा फोरकास्टेड है। और वो कितना इफेक्टिव है, कितना आउटकम बेस्ड है, कितना उसके साइड इफेक्ट्स हैं और कितना टेंजिबल है, हाउ इट फिट्स इन मैन्युफैक्चरिंग, यू हैव टू नो। बराबर? EVs जो बन रही है, EVs, so there are multiple sectors where it is being tapped, right? Artificial intelligence, everybody is aware, it's a new buzzword, but artificial intelligence कितना effective है in which sector? अगर रोबोट आप डिफेंस में बना रहे हो तो यू हैव टू गो ऑन माइक्रो लेवल, कंस्ट्रक्शन का कुछ सिस्टम गड़बड़ हो गया तो दैट इज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज। बट इफ यू आर मेकिंग रोबोट्स फॉर सर्जरी, अगेन इट्स वेरी क्रिटिकल। बट अगर यू आर मेकिंग रोबोट्स टू डिलीवर फूड, तो देन द प्रोसेस इज सिंपल, यू नीड नॉट गेट इनटू निटी-ग्रिटीज, ठीक है। तो एक हो गया आप क्या बना रहे हो, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो बनाने में, और वो कहां कहां आने वाला है, बराबर। तो मैन्युफैक्चरिंग के जो विंग्स हैं, वो पहला है प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, दूसरा है एड ऑन टेक्नोलॉजी, तीसरा है कि आप बाय प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, आउटपुट को कितना इनोवेटिव कर सकते हो। मेक सेंस? हेलो। अब इसके बहुत सारे आउटस्ट्रेच आर्म्स हैं, असेंबली, लॉजिस्टिक्स, एंड दे आर ऑल लिंक्ड टू दिस मैन्युफैक्चरिंग, राइट। बट आज मैं ये तो आपको सब थ्योरी किताबों में, इंटरनेट एक बटन क्लिक पे मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं ट्रिगर करके कि इस स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग से आप क्या कर सकते हो। ये स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टॉपिक और डोमेन में आप क्या इंपैक्ट कर सकते हो, बराबर। आपको मैं कुछ पेटेंट्स, आईपीस, इनोवेशंस रिलेटेड टू कोर और सर्विसेज थोड़ा टच करना चाहता हूं। lot of municipal corporation, government bodies, they are also wanting such institutes to work on these innovations and patents and problem statements. एक उस दिन collaborator और scientist मिले हमको, उन्होंने बताया कि they are working on solid waste management, they are working on attendance systems manufacturing, semiconductors, chips, and microprocessors, all over even civil, all sectors have these scope of innovations. कि जो LED बल्ब आ रहा है, लाइट इमिटिंग डायोड हो ऐसा बना रहे हैं, जो ये जो करंट डिफरेंस में मर्क्यूरी है, कैंसर जो सेल्स हमारे अंदर जा रहे हैं, तो वही मैंने बोला आप जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो ये भी देखो कि उसके रॉ आउटपुट और बाय प्रोडक्ट कितना ज्यादा है, बराबर। आई वेंट टू अ प्लांट वेयर दे वर मैन्युफैक्चरिंग राइस, तो उन्होंने बताया ये प्रोसेस में करते करते एक उनका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उससे तेल निकलता है। ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जिसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, लॉट ऑफ एक्सटेंडेड आर्म्स भी हैं। यहां हमारा स्कोप निकलता है ये टॉपिक से कि हम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ थ्योरी की तरह ना देखते हुए उसको प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन में क्या इनोवेशन कर सकते हैं, हम बाय प्रोडक्ट, एक्सटेंडेड प्रोडक्ट्स और आउटपुट में क्या नया सोच सकते हैं। वो जो वेस्ट प्लांट है ना, मैंने कुछ देखा बच्चों ने बनाया था, वेस्ट प्लांट से वो लोग क्राफ्ट पेपर बना रहे हैं, वेस्ट अलगी जो है उससे वो लोग गट्टू स्टोन बना रहे हैं जो एक्चुअली अभी सिग्नल्स पे लग रहे हैं। तो वेस्ट से क्या बना सकते हैं,
हम जो बना रहे हैं उससे कितना कम वेस्ट हो सकता है, कार्बन क्रेडिट्स कैसे हो सकते हैं, मेक सेंस? हम जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हम जो ईवी की बात कर रहे हैं, 25 साल बाद कितना बड़ा सेमीकंडक्टर वेस्ट निकलने वाला है आपको पता है? और आप क्या उसमें कुछ इनोवेशन सोच सकते हो, क्या उसमें कुछ रिसाइकल सोच सकते हो? तो यू विल बी पायनियर्स नेक्स्ट 10 इयर्स। सब आपको ढूंढते रहेंगे, क्योंकि अभी सब ईवी और सोलर बना रहे हैं, लेकिन इस बैटरी वेस्ट और सोलर वेस्ट की कोई बात ही नहीं कर रहा। अब 25 साल बाद जो ये पूरा वेस्ट निकलेगा, मेरी ईवी की गाड़ी है, 10 साल बाद तो बैटरी डेड होगी ना, वो बैटरी कहाँ जाएगी? इतनी सारी बैटरी कहाँ जाएगी? उसके वेस्ट के बारे में अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग सोच सकते हो तो वो सबसे स्मार्ट होगा। प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन में क्या कर सकते हो? एक दूसरा